हाँ जी बेटे, चलिए जी, you can unmute yourself. चलो, today we can start with the roll number 1. हर्षदा लक्की से start कर ले. हाँ जी हर्षदा dear, you please tell what is the meaning of excess demand? Ma'am, can you please repeat? Define excess demand. Can you please? Question is, what is the meaning of excess demand? When the aggregate demand of the commodity, when aggregate demand of the commodity is gets increased, No, this is not the right answer. and there is a situation of inflationary gap. You are mixing. आपने पढ़ा नहीं है. I am just asking. The effect is not asked. Only meaning. Anyhow, rise again. Kanika Gupta, please define excess demand. Excess demand refers to the situation when the aggregate demand is more than that of the aggregate supply, Yes. Corresponding to the situation of full employment level. Equilibrium, corresponding to full employment equilibrium. This is the right definition. Harshita, ऐसे आपने define करना है. Okay, very good Kanika. Tanveer, those who are visible on my screen in sequence, I am asking them. हाँ जी Tanveer बेटे, define again excess demand quickly. Excess demand is that case in which actual aggregate demand is higher than more than the aggregate demand required for the full employment level or equilibrium level. Yes, that's also another way of defining. Okay, that's also right. Simple terms में अगर कहना हो तो when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment. Sometimes we get confused in actual required. थोड़े words थोड़े difficult लगते हैं ना, तो सीधा सीधा भी we can define. Otherwise it's okay. Very right. Okay. Yati Sharma, please mention any 2 or 3 causes of excess demand. Simply in one line. Yati Sharma, if you are there. Yes, ma'am. Any 2 or 3 causes of excess demand? Ma'am, deficient finance. Excess demand, bete, excess demand के causes. Why does excess demand take place? Increase in propensity to consume. Yes. Increase in autonomous investment. Okay. And deficient finance. Deficit financing. Okay. ठीक है, fine. Any 3 can be told. Okay, let me see next student. Just a minute. हाँ जी, हरलीन कौर, बेटे, tell any 3 reasons of excess demand. Any 3? Reduction in taxes. Yes. Increase in investment. Yes. Rise in export. Okay, fine. Line नहीं भी याद करनी, no problem. You can just tell the heading, no problem. Okay, next Molly Gupta, please tell any 2 or 3 this effects of this excess demand. Yeah, what are the effects of excess demand on output, employment, and prices? Ma'am, this does not affect output. Yes. And it does not affect employment level. Right, right. And it leads to rise in general price level. Yes, very right. 3 points can be made. अगर ऐसे question आ जाए 3 marks में, very good बेटे. There is no effect on this level of employment. It remains same. No changes there. Similarly, no effect on output because already maximum output, possible output is being produced. So no effect on that. Only effect takes place in case of prices which keep on rising due to excessive demand. Aggregate demand के ज़्यादा होने के करके prices keep on increasing. Very right. Okay. Next, Divyanshi, please define deficient demand. Deficient demand is a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment equilibrium level. Yes, very right. When AD is less than aggregate supply corresponding to full employment level of equilibrium. Very good. Next is Vasundhara. Tell any 3 reasons of this deficient demand. Any 3? Decrease in propensity to consume, rise in imports, and fall in exports. Yes, very good.
5-6 points are there. That depends upon your choice. आप में से आप कोई भी लिख सकते हो. All are fine. Very right. Next is Priyanka. हाँ जी बेटे प्रियंका, what are the effects या impacts of this deficient demand? Effect on output mean increase in output. Yes. Increase in then नहीं increase in decrease. output नहीं, increase in output नहीं आएगा. Okay, employment के ऊपर बताइए. Employment ओके नो प्रॉब्लम. इशिता शर्मा आप बताइए. बी मेंटली प्रिपेयर्ड बेटे, मैंने सुनना है आपसे, सो बी रेडी. हाँ जी इशिता, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? Effect on the employment, it causes the involuntary situation under which the planned output falls. नहीं इनवॉलंटरी क्या होता है आगे? आप दो चीजों को मिक्स नहीं करो. पहले बताओ इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या है. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस और फॉल्स? नहीं इतना टाइम नहीं लगाना बेटे, फिर सबकी टर्न है. नहीं किया, याद नहीं किया आपने? लगता नहीं है याद किया है. लेट मी आस्क अदर्स. सीधा सीधा एक एक लाइन बतानी है बच्चे आपने. नवजोत कौर आप बताइए बेटे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट? Yes, ma'am. The output will be fall. Output will fall. Yes, output as there will be no production. Yes, reduction in level of production या output falls. Okay, Dilpreet Singh, what is the impact on employment level? Deficient demand के केस में किया नहीं याद नहीं किया. Okay, कल को याद करके रखना, ठीक है? Okay, honestly you are telling, that's right. बट इतने ऑनेस्ट नहीं बनना कि हमेशा याद ना करो और रोज कह दो कि मैंने काम नहीं किया है. कल को याद कर लेना. हाँ जी नमन आप बताइए बेटे, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस दोनों बता दो. एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस बोथ डिक्रीजेस. क्या प्लीज रिपीट. एम्प्लॉयमेंट को क्या होता है? इंक्रीजेस और रिडक्शन. ओके, एंड प्राइस लेवल? रिडक्शन. वेरी राइट. एक बेटा इसमें सिंपल सा याद करने का एक ट्रिक है. डेफिशिएंट डिमांड के केस में ऑल द थ्री थिंग्स फॉल. तीनों में कमी होती है. देयर इज रिडक्शन. प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑल फॉल. और एक्सेस डिमांड के केस में सिर्फ प्राइसेस राइज, बाकी दोनों सेम रहते हैं. तो मतलब कोई ना कोई आप अपना तरीका ढूंढ लो कि कैसे आपको याद रहे. सो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड ऑल द थ्री थिंग्स फॉल. ठीक है. उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, विच गैप अराइजेस ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड? डिफ्लेशनरी गैप है ना. गैप की टर्म में क्वेश्चन आ जाए, विच गैप अराइजेस ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड, तो योर आंसर विल बी डिफ्लेशनरी गैप. सिमिलरली विच गैप अराइजेस ड्यू टू एक्सेस डिमांड, आंसर विल बी इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है जी. फिर आपने उसका डायग्राम बना लेना. अच्छा, डायग्राम से मुझे याद आ गया, yesterday I asked you to send me the pics of this both the equilibriums with both approaches, but very sad to see only 4 students, 4 girls ने भेजा, हर्षिता अरोड़ा, मौली गुप्ता एंड वसुंधरा एंड दिव्यांशी. 4 बच्चों ने भेजा है. तो बेटे अगर आपको एक काम का है तो इसका मतलब उसमें मिस्टेक्स हो सकती है ना. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इफ यू सेंड टू मी ओनली देन आई कैन चेक. अब ऐसे लाइव तो नहीं फिर चेक हो पाता है, तो आप प्लीज एडहियर टू द इंस्ट्रक्शन. ठीक है. ओके, चलो अब आ जाए हम नेक्स्ट लेसन के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, मेजर्स टू करेक्ट देम. ठीक है. अच्छा, जल्दी से हम बता देते हैं. लेट मी सी द नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है मेरी स्क्रीन के ऊपर. एक मिनट. हाँ जी, प्रथम मक्कर, प्लीज बी विजिबल इफ यू आर देयर इन द मीटिंग. हाँ जी बेटे, नेक्स्ट है. थोड़ा सा मैं शुरू कर देती हूँ. लेट मी स्टार्ट. Two types of measures are there which can be adopted. One is called fiscal measures or budgetary measures, which are adopted by the government of the country. ठीक है. बजट से रिलेटेड जो होते हैं, जो बजट में their provision can be made. And the other measures are called monetary measures. They are taken undertaken by the central bank of the country in any country. और अपने country में RBI. ठीक है. जो budgetary measures हैं उसमें 2 measures are there as per the syllabus. One is related to taxation, one is related to
दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऐसे ही जो मॉनिटरी मेजर्स हैं उसमें two types of further parts are there. One is called quantitative measures or tools. Second is called qualitative measures or tools. ठीक है, ये पहले इनके आपने नेम्स याद करने हैं। आपको ऐसे भी आ सकते हैं, नेम एनी 2-3 मेजर्स, आगे कोई भी नाम होगा तो आपने पहले यू हैव टू राइट द नेम्स ओनली। अब उसके बाद लेट अस टेक फर्स्ट केस कि अगर इफ देयर इज एक्सेस डिमांड, तो इन दैट केस व्हाट कैन बी डन। ठीक, अब नाउ बी रेडी। अब मैंने हर एक बच्चे से एक एक पॉइंट पूछना है। If there is excess demand, what can be the budgetary measures? Okay, नवजोत कौर आप ही स्टार्ट कर दो बेटे। What should be done to taxes? नवजोत बांसल नहीं, ओके। हाँ जी नवजोत, टैक्सेस को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? अगर रिड्यूस excess, करना चाहिए। नहीं, अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड तो मतलब फिर इंक्रीज करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सेस डिमांड को बेटे आपने याद रखना, एक्सेस डिमांड का मतलब इफ देयर इज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, मतलब जनरल प्राइसेस आर राइजिंग, तो उस केस में प्राइसेस को कंट्रोल करना है बाय कंट्रोलिंग द दिस परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, उनके पास कम इनकम जाए, कम मनी जाए, उस चीज को रोकना है। तो देयर शुड बी इंक्रीज इन टैक्सेस। ओके, वेरी फाइन। यति शर्मा, व्हाट शुड बी डन टू पब्लिक एक्सपेंडिचर? यति शर्मा, okay. Molly Gupta, what should be done to public expenditure? It should reduce. Yes, ठीक है, very good. Public expenditure should be reduced. कमी करनी चाहिए उसमें. Okay. और अगर है deficient demand, तो then in that case तनवीर बताइए what should be done to both these cases? If there is deficient Taxes demand, should be reduced and government expenditure should be increased. very right, very good. Taxation या tax rate या taxes should be reduced and public spending should be increased. अगर आ जाए आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन कि बताइए ये फिस्कल या बजटरी में है, तो फिर थोड़ी सी 2-2 लाइंस बना लेनी है, दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेना। ठीक है जी, वेरी गुड। ओके, नाउ मॉनिटरी मेजर्स। वसुंधरा आप बताइए बेटे, व्हाट शुड बी डन टू बैंक रेट एंड लीगल रिजर्व रेशियोज इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड? Bank rate should be increased. Right, right. Or legal reserve ratios? It should also be increased. They should also be raised या increased. Legal reserve ratio मतलब including SLR and CRR. Both should be increased. Very good. Okay, next कौन है? Let me see. यति शर्मा visible नहीं हो रही है. Okay, मौली गुप्ता. मौली ने बता दिया, I think. मौली ने बता दिया. प्रियंका आप बताइए बेटे. What should be done to open market operations? Excess demand के केस में what should be done to open market operations? They will be increased. इसमें increase वाला point नहीं आना है, याद करो, आज काम नहीं याद किया। नमन, what should be done in case of open market operations? Government should sell their securities to the people. Yes, very right. Government नहीं कहना, RBI, Central Bank can या it should sell the government securities, क्योंकि government आप नहीं करती, government के behalf के ऊपर central bank ही करता है। तो central bank can या it should sell the securities in the market. Very right. अगर there is excess demand. Okay. Then what should be done to repo rate and reverse repo rate? Divyanshi, what should be done to repo rate and reverse repo rate? Ma'am, they should be increased. Yes, they should be increased. बड़ा सिंपल सा याद करने का तरीका, इस केस में सारा कुछ इंक्रीज ही होगा और ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटीज की सेल हो जाएगी, बस इतना ही है। देन अगर देयर इज डेफिशिएंट डिमांड, तो इन दैट केस ऑल दीज थिंग्स शुड बी रेज्ड। ये सारी जो रेशियोज हैं, रेट्स हैं, दे शुड बी इंक्रीज्ड। एंड इन केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन देयर शुड बी परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड जो है, अदर मेजर्स कौन से हैं? क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अगर है एक्सेस डिमांड तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर टू बी रेज्ड, बढ़ा देनी चाहिए। एंड क्रेडिट राशनिंग शुड बी डन, कंट्रोल करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रेडिट प्रोविजन शुड बी देयर। एंड इफ देयर इज डेफिशिएंट डिमांड, तो उस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड या शुड बी रिड्यूस्ड।
and credit rationing is stopped, yeah, it is made liberal by the central bank. Easy provisions of credit, those type of provisions are made. बस ये सारा कुछ होता है. तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा. डिफाइन कोई भी आगे नाम आएगा, आगे आ सकता है गिव 4 मेजर्स या 5 मेजर्स टू करेक्ट देम. अगर कोई पर्टिकुलर नेम इज नॉट गिवन कि फिजिकल है या मॉनेटरी है, तो फिर देन दैट केस आपकी चॉइस है. कोशिश करो दोनों के पॉइंट्स दे दो, 2 फिजिकल मेजर्स दे दो, 2 मॉनेटरी दे दो, अदरवाइज आपकी चॉइस है. बट इन केस पर्टिकुलर नेम हैज बीन मेंशन कि यही वाला पॉइंट दो, फिर देन यू आर बाउंड टू गिव दैट वेरी पॉइंट. फिर उस केस में अपने हिसाब से नहीं चलना है, फिर आपने प्रॉपर जो पूछा है ओनली दैट वेरी आंसर इज टू बी गिवन. ठीक है. अच्छा, अब अपना पहले का होमवर्क अभी सुन लो. अभी आपने मीटिंग के बाद में यू विल ड्रॉ 2 डायग्राम्स, एक इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड, सेकंड डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड. ये दोनों डायग्राम प्रॉपरली लेबल्ड करके मीटिंग के इमीडिएटली बाद बना के अपना मुझे सेंड कर दीजिएगा. ठीक है. कुछ मिस्टेक होगी तो आई विल लेट यू नो. ठीक होगा तो मैं ओके करके चेक करके ओके लिख दूंगी. मिस्टेक होगी तो आई विल लेट यू नो. ठीक है. सो पे अटेंशन टू द वर्क. अभी 9:21 हो गए. लेट अस स्टार्ट द टेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी है तो इट मे टेक सम टाइम. हाँ जी सुखजीत मैम, कैन यू प्लीज शेयर द फर्स्ट लिंक. One minute, ma'am. हाँ जी, हाँ जी बेटे. टेस्ट में अगर कोई चीज आपको क्लियर ना हो तो उसको पहले अपना रफ कॉपी पे आप अपने हिसाब से लिख के देख लो, बाद में उसको थोड़ा सा ब्रीफ फॉर्म में आप मेंशन कर सकते हो. समटाइम्स एकदम I've क्लियर. shared, ma'am. हाँ जी, ठीक है जी. थैंक यू मैम. Yes, all students, you have got the link. Now you please start doing that.
If the statement of any question is not clear, means line is not clear, you can tell me. I can read from my own notebook. But the time is 9:31, so please be fast. Last only 2-3 minutes are required to tell the answers also.
Yes, Vijay, I think students have done. They have started sending me the pics of diagrams. That means they would have attempted. Jaldi se kar lijiye. If anyone is left, please attempt fast because time is 9:35. Excuse me, ma'am. Anji Vijay. Ma'am, which chapter we have to revise for tomorrow? I have already sent in the class group government budget. ठीक है, बजट पहले PT2 के कर लेते हैं because they are comparatively new chapters. क्योंकि करना तो हमने सारा ही है. We will try our best. जो रह जाएगा वो आपको अपने आप करना पड़ेगा. ठीक है जी. हाँ जी, can we start the discussion of answers? Dear Priyanka Badwa, कर ले आंसर स्टार्ट. ओके, नमन, तनवीर, दिलप्रीत, should we start? Okay, fine, very good. चलिए बेटे अब अपने आंसर सुन लो, सुन के अपना देख लो, बट करेक्शन नहीं करनी है, उसके बाद सबमिट कर देना. ठीक है. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज, फर्स्ट है इसमें रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज इन्फ्लेशन. ठीक है, या इन्फ्लेशनरी प्रेशर या टेंडेंसी या राइज इन प्राइसेस, इन एनी मैनर यू कैन राइट. तो रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज इन्फ्लेशन या राइज इन प्राइसेस या इन्फ्लेशनरी प्रेशर या टेंडेंसी. ओके, सेकंड क्वेश्चन वाज deficient demand is caused by, its answer is fall in investment expenditure. ठीक है, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन, fall in investment expenditure. क्योंकि बाकी के जो 2 रीजंस हैं वो डिमांड को बढ़ाने वाले हैं. सो दिस इज द ओनली वन ड्यू टू विच देयर इज डेफिशिएंट डिमांड, fall in investment expenditure. नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इज, अब इसमें 3 ऑप्शंस आर गिवन, boom condition, then rise in prices, then fall in output level. So last one is the right answer, fall in output level. Okay, result of deficient demand is fall in output level. Next है, what leads to increase in aggregate demand? इसमें 2 points पहले दिए थे, fall in imports, फिर दिया है increase in government expenditure, last है both of these. both मतलब both A and B जो ऊपर दिए हुए हैं. So both above, दोनों ही है उसके रीजंस, फॉल इन इंपोर्ट एज वेल एज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो आंसर में आपका जो बोथ ऑफ दीज या बोथ अबव वाला ऑप्शन है वो ठीक ऑप्शन है. देन नेक्स्ट वन इज नेम एनी 2 क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब कई सारे मेजर्स आर देयर, अब आपकी चॉइस है. दिस इज ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन, आप कोई भी लिखते हो. यू मे राइट बैंक रेट, यू क्या करना है उसको वो नहीं पूछा, ओनली नेम्स हैव बीन आस्क्ड. तो बैंक रेट, SLR, CRR, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इनमें से जो आपको याद आए उस टाइम पे यू कैन राइट एनी 2 नेम्स. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट शुड बी द टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. ये 2 मार्क्स में वैसे भी आ सकता है या 3 मार्क्स में भी आ सकता है. व्हाट शुड बी द टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. तो नंबर 1 आपने कहना है टैक्सेस को क्या करना चाहिए, टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड, कम करने चाहिए, टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड. नंबर 2, पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना चाहिए, दैट शुड बी इंक्रीज्ड. राइट, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड नंबर 2, टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट मेजर इज द बेस्ट टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड. फिर ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट है इंक्रीज इन रेपो रेट, सेकंड है इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, थर्ड है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और लास्ट है बोथ A and B अगर दिया हुआ है तो इसमें करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, हमें अब ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है. गवर्नमेंट मेजर कौन से हैं, तो जो फर्स्ट 2 हैं दे आर द मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल बैंक, तो वो गवर्नमेंट के मेजर्स नहीं है. गवर्नमेंट वाला मेजर एक ही है, दैट इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, name the policies which can be used to correct excess and deficient demand. Only names have been asked, so you are supposed to write number 1 fiscal या budgetary policy of the government, number 2 monetary policy of the central bank. Only name, fiscal policy and monetary policy. Next है deflationary gap is measured by, इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है, required AD minus actual AD. जैसे वर्डिंग तनवीर ने यूज किया था ना, वही वाला है ये.
Deflationary gap is measured by, third is the right option. Required